Hafiz, well played today. And are you now, were you nervous at any point of time when the Bangladesh scored 175 for 6 and there was talk around 140 is the target? Did it ever cross the mind in the dugout and with the coach and all that this is what we are chasing? Well, not really. I think we were very positive as far as this game is concerned. We knew that whatever it will be, we are going to chase it. And I think today Bangladesh team played really well. They really put us a little bit under pressure. Our bowlers couldn't bowl well, to be honest. They were a little bit short, and I feel after that we really come out with a positive attitude. Imran was exceptional tonight. He was at his best, I would say, in T20. And it's great to see as a captain and as a team. We are really happy the way the boys really approached toward this target. But not really. I mean, I think in the dugout we didn't discuss anything about 140 or something. We just went to win the game. This knock by Imran, is it one of the best you've seen in T20 cricket? Not really. I mean, we have seen some greats, from as far as T20 is concerned. But yes, while chasing, it is great to see someone from Pakistan playing, this sort of innings. And I think, Imran is very much capable of that, and that's the reason he is in the squad. And we as a team, we are really happy that the top orders are doing something for the team. Kamran already shown that he's in a good touch. Nasir Jamshed also is in a good touch. So as a team, we are really happy that batsmen are contributing to win to win the games for Pakistan. Skipper, in different situations, do you tell Imran to go out and bat differently, or do you just give him the license to go and play like he did today? No, I think he's very talented player. There's no doubt on his talent, but sometimes he plays some short of rush of blood. So what I normally do, I just give him all the thoughts, whatever he really wanted to do. I don't stop him. But sometimes I just say that if we got already 2 boundaries in over, so there's no need to to play for the third one. So this is the only thing I can as a team we can discuss. But he's in a good form, and I wish he can continue with this great form and win more matches for Pakistan. Does he listen to you when you tell him that? I think he listened to me. Thank you so much. I mean, the way he is responding to my calls every time, it's great to see. And I think he's one of the talent from Pakistan who I personally feel underperformed in his whole career, and I wish him very best of luck from here on. If he can continue playing like this, it will be great for the Pakistan cricket. Hafiz, as you said that you are not happy with the bowling, so with the Super 8s coming, all formidable teams in the lineup in your group, so would you ask your bowlers to pull their socks and be effective? Well, I can't say that I'm not happy with the effort of the bowlers, but yes, there is a little bit concern as a captain or as a team. Our fast bowlers are not producing the way they can. But we personally feel Yasir Arafat come out with a good bowling, and Shahid Afridi was again he bowled really well tonight, and which is a good sign for us, because in Colombo it will turn a little bit. These pitches are a little bit different, and we are really happy to see our bowling is doing well. Yeah, the fast bowling is a little bit concerned, but I know that this batting, I mean this pitch was a really belter, but really they tried their hard, but they couldn't do the things right for the Pakistan. But still I think 170 on this track, we knew that we can chase that, because if our bowlers cannot stop them, so if we can continue playing normal cricket, and we can chase down this target, and as a team we are really happy to win both matches in the round, and inshallah we are looking forward for the Super 8 matches. Last question in English. Shakib, a word on Shakib's knock. What did you make of his knock? One of the best? Well, definitely he played really good innings. He put us under pressure while batting, and he really gave a momentum to Bangladeshi team where they really wanted to get, I think, 160 plus. That was I would say they was it was their target, but they achieved 175 with that. But yes, there's no doubt he played very well. Okay. Group of that Super 8, who do you think will be the toughest opponent? Well, I think we have seen a little bit glimpse of that in the Super 8. I think
we knew that every team is in T20 is very much capable to beat any other team. So we are not going to have anything in our mind we are not going to relax ourselves a little bit. We have to really work hard to win all the matches, and we knew that the next 3 teams in our group are one of the best in the world. So we really looking forward for that, and boys are really confident that we can do something good for the Pakistan. हफीज़, इमरान को एक तो इतने अरसे बाद टच में है, ये तो सबको खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह आपने फास्ट बॉलिंग का कहा, अब आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसमें आप कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई तब्दीली, कोई सोच रहे हैं इस पर कि हम जो है स्पिनर को एक हमारे पास बैठे हैं उनको रज़ा को चांस दे दें, या फिर रज़ाक को हम लाएं, किसी भी जो फास्ट बॉलर्स हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई एक्सपेरिमेंट सोच रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो भी रोल प्लेयर को मिल रहा है टीम के लिए वो उसको प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 15 के 15 लड़के हमारी टीम में माशाल्लाह मैच विनर हैं, और तमाम जो टीम है वो यूनाइटेड होकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। इसमें कम्बिनेशन के मुताबिक टीम को देखते हुए, पिच कंडीशंस को देखते हुए अगर हमें कोई भी तब्दीली करनी होगी तो हम ज़रूर करेंगे। मुख्तलिफ टीम्स के मतलब के ऐसे इवेंट के अंदर आपने हर एक गेम के बाद एक नई टीम के साथ खेलना होता है, तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आप चेंज करते हो, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी वहाँ जाके। तो हम देखेंगे एज ए टीम वहाँ पहुँच के वहाँ की कंडीशंस को असेस करेंगे, फिर उसके मुताबिक जो बेस्ट अवेलेबल या जो कम्बिनेशन हम लोगों को अच्छा लगा इंशाल्लाह टीम उसको लेके जाएगी। इमरान, जिस दिन आपका बल्ला चलता है वो चलते ही रहता है, और आपको एक इंस्पायर्ड सिलेक्शन कहा जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए, कैप्टन ने बैकिंग दी है, मैनेजमेंट ने बैकिंग दी है, तो थोड़ा प्रेशर था आपके ऊपर क्योंकि ये 140 तो आपको बनाना ही थे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी बात, मेरे साथ पूरे मुल्क की और स्पेशली कप्तान और कोच की काफ़ी बैक सपोर्ट है, और इन्होंने जितना मेरे पे इत्मीनाद किया या जिस तरह मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जस्ट से कि आपका जो नेचुरल गेम है आप वो खेलो, लेकिन जाते ही शुरू में 1-2 ओवर अपना आराम से खेलो, जो आपका बैट बॉल मिलता है आप उसको यूज़ करो। तो जस्ट प्रैक्टिस भी मैंने उसी तरीके से की है, फिर उसके बाद मैंने यही अपनी नॉर्मल गेम खेल रहा हूँ। अगर 175 जैसे आज था, तो जैसे कप्तान मेरे साथ खेल रहा था, जैसे कि एक बाउंड्री का चांस लेना है, और उसके अलावा सिंगल डबल एंड ऑफ द डे 1 ओवर आपका लगेगा, तो इंशाल्लाह हम इजीली मैच जीत जाएंगे। इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है कि 2-2 मैच जीतने वाली चारों टीमें जो हैं वो एक पूल में चली गई हैं सुपर 8 में, और जो एक जिन टीमों ने मैच जीता है वो एक पूल में चली गई हैं। तो क्या टूर्नामेंट का फॉर्मेट समझ रहे हैं कि पहले से डिसाइडेड है कि फ़लाँ टीम फ़लाँ से खेलेगी? मतलब दूसरे खेलों में नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि पहले से पूल तय होता है? आई थिंक इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने ऑलरेडी इसके मुतल्लिक एक सेट हम सबको पता है इसके मुतल्लिक, वो 2 मैच जीते या 1 जीते, सबको पता था कि जब हम अपने राउंड को जीत के जाएंगे तो आगे ये वाली टीमें आएंगी। तो आई थिंक इसमें मैं कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता। जो भी टीम हमारे सामने आएगी हमने उसको जीतने की कोशिश करनी है। हफीज़, जिस तरह शाहिद भाई ने आपसे सवाल किया था अंग्रेज़ी में, वही मैं उर्दू में आपसे करूँगा कि आगे जो तीनों टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इतनी सख्त टीम है, तो उसमें उनको देखते हुए जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग तो सबको पता है, जो फास्ट बॉलिंग का जो इस वक्त सूरत हाल है उसको किस तरह आप देखते हैं, कितने फ़िक्रमंद हैं? और स्पेशली जो उमर गुल हैं, जब आप बात कर रहे हैं कि बैटिंग विकेट थी और ये सब था, लेकिन उमर गुल की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रिदम में नहीं है, अब सब चीज़ें हैं, तो उसको किस तरह आप देख रहे हैं? देखें, मैंने पहले बोला है कि सबसे पहले तो जीत की खुशी होती है, लेकिन ऑब्वियसली जो एरियाज़ आपके ऐसे होते हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो सबके लिए हैं। हम अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो हमारी बॉलिंग है, और अब भी हमारी बॉलिंग ही है, लेकिन इस वक्त आई थिंक हमारा जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे थोड़ी बेसिक्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी कमी नज़र आ रही है। आई थिंक कि बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम साहब इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बॉलर्स खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आई पर्सनली फील एज ए कैप्टन के सम टाइम प्लेयर पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन चीज़ें उसके लिए काम नहीं करती। लेकिन एज़ फार एज़ देयर टैलेंट इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ देयर एफर्ट इज़ कंसर्न, मुझे पूरा यकीन है कि जो गुमर गुल है या सुहेल तनवीर है या जो भी लड़के इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए 100% देने की। अच्छा या बुरा परफॉर्म होना वो पूरी टीम के साथ है, कोई भी जानबूझ के नहीं करता, लेकिन यह है कि पूरे लड़के इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर और बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दें। आपने इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, इसको आज सईद अजमल जो है वो उस तरह नज़र नहीं आए। उसकी आपको लगता है कि कल जो सकलैन मुश्ताक ने खुद बॉलिंग से प्रैक्टिस करवाई है,
बांग्लादेशी बैट्समैन की, शायद कुछ सीख गए हैं कि आज दूसरा वो समझ गए और सही उस तरह कामयाब बॉलर नज़र नहीं आया जिस तरह होना चाहिए था? देखें, मेरा ख्याल है कि सैयद अजमल पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है और उसने हमेशा पाकिस्तान के लिए हमेशा क्रूशल टाइम के ऊपर बॉलिंग की है और आई थिंक वो हमारा मैच विनर है। और जिस तरीके से उसने हमेशा हमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ टफ़ टाइम में हमेशा वो अपने आप से अपनी बॉलिंग के साथ हमें मैच जितवाता है, तो उसमें अगर आज अगर उससे अच्छी बॉलिंग नहीं, आई थिंक उसने अच्छी बॉलिंग की है, इतना बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम उसको अच्छा खेली है तो अच्छी चीज़ है। अगर सकलैन भाई ने कुछ बताया होगा तो ठीक है, वो उनके बॉलिंग कोच हैं। थैंक यू वेरी मच। नो इमरान, आपने इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, इसको किसके नाम करेंगे आप? पहले तो मैं कहा थैंक्स गॉड, नाम तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नाम करूँगा बिकॉज़ इतने अरसे के बाद मैं टीम में कमबैक किया और जिस तरह पूरे पाकिस्तान की कौम मेरे लिए दुआ करती है और मेरे इतने वेल विशर हैं, तो मैं स्पेशली उनके नाम करूँगा बिकॉज़ इतनी मेरी दुआएं मेरे पीछे। हर बंदा यही कहता है कि आप 2020 के अच्छे बैट्समैन हो, अच्छा खेलते हो, लेकिन बस उनकी दुआओं और उनकी कोशिश सामने रखते हुए मैं बस एक चीज़ रियलाइज़ की है कि कम से कम 15 से 14-15 ओवर तक विकेट में स्टे करूं, जो बॉल बैट बॉल है उस पर चांस लूँ, अदरवाइज उस पर सिंगल लेके ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पे रुकूं। और यही सोच के आज जैसे इतना बड़ा टोटल था और मैं और स्कीपर यही अंदर बात कर रहे थे कि हम बैट बॉल का इंतज़ार करेंगे कि ऑटोमेटिकली देंगे, कम से कम जितना विकेट पे रुकोगे उतनी अच्छा करोगे। इमरान, 2 साल के बाद वापसी हुई, 2010 के बाद 2012 की ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ थी, तीनों मैचों में बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सकते, तो यहाँ आते वक्त क्या जहन में था? लोग कह रहे थे कि अब ये इमरान नज़ीर का आखिरी चांस है, तो वाकई क्या जहन में ये सोच कर आए थे कि बस आखिरी बार है, इसके बाद फिर सेलेक्टर्स ने जो है वो भुला देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खैर ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम मैं अपने खुदा पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ और आखिरी चांस ये खैर हर बंदे भी की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मैं अपनी कैपेबिलिटी जितनी एबिलिटी है मेरे में या जितनी मेहनत मैं करता हूँ अपनी क्रिकेट, मैं खुद क्रिकेट का इतना शौकीन हूँ खेलने का, तो मैं हमेशा से अपनी क्रिकेट अपने शौक़ से खेलता हूँ। मुझे नहीं परवाह होती कि मुझे खैर चांस मिले या ना मिले, मैं हमेशा अपनी क्रिकेट पे ध्यान देता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अच्छा परफॉर्म करूँ या ना करूँ वो खुदा की मर्ज़ी है, लेकिन मैं हमेशा से ये सोच के खेलता हूँ कि अपने मुल्क के लिए मैं हमेशा से ज़्यादा खेलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को विन दिलवाऊँ। नहीं, अब इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें ऐसी सोच के रखी हैं कि जैसे 20 ओवर में पहले मैं सोचता था कि स्मैशिंग खेलूं, पहले 6 ओवर के चक्कर में होता था, लेकिन अब 2020 जितनी क्रिकेट हो गई है वो बड़ी काउंटिंग क्रिकेट है, तो उसमें मैंने भी एक चीज़ यही सोची है कि अब मैं भी फर्स्ट 6 ओवर अगर हमने एक बाउंड्री मिलती है, 1-2 सिंगल मिलती हैं, एक ओवर में 2 से 3 फोर्स मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में स्कोर रन्स वहीं आ जाते हैं। इमरान, 10-11 साल हो गए हैं आपको पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, कभी यकीन होता है कि इतना वक्त गुजर चुका है? ये चीज़ तो वाकई मुझे अभी भी ऐसे ही लगता है जैसे मेरा डेब्यू हुआ है, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी यंग एज में मैंने डेब्यू किया था और स्टिल मैं हार्ड वर्कर हूँ और यही सोच के मैं बस मेहनत करता रहूँ, तो मैं हमेशा अपनी क्रिकेट से लगाव करता हूँ और अपनी क्रिकेट दिल से खेलता हूँ। इमरान, ये आपकी जितनी आपने 10-11 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, बेस्ट इनिंग्स है? बेस्ट इनिंग मैं इस वजह से कहूँगा कि थोड़ा सा मैं अक्लमंदी से कह सकते हैं कि खेला हूँ थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके, और बड़े वो ऑब्वियसली हर बंदा यही कहता है कि जाते ही मारना शुरू कर देता है, लेकिन अब मैं थोड़ा ये सोच के जाता हूँ कि मैं सिंगल डबल्स पे भी ध्यान दूँ, बिकॉज 20 ओवर्स में हर बॉल पे हिट नहीं लगती, और ये चीज़ हर बंदे के मुझे जैसे क्वेश्चन करता है, जो भी मिलता है वो मुझे बेसिकली प्यार करने वाले जो मिलते हैं यही कहते हैं कि अगर थोड़ा सा स्टे करके विकेट पे खेलो तो मेरे ख्याल में कि आप अच्छे रन हर मैच में करोगे। थैंक यू।